اسے مبارک کہنے کے لیے، اس کی شکر گزاری کرنے کے لیے، اور اس کی باتوں کو سیکھنے کے لیے۔ آئیے میرے ساتھ کتاب مقدس میں سے، گاسپلز میں سے لوکا رسول کی انجیل، اس کا 9واں باب اور اس کی آخری چند آیات جو ہیں ہم پڑھ کر خدا ان کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ کلام مقدس میں یہ حوالہ لوکا کی انجیل اس کے 9ویں باب کی جو ہے 59th ورس سے لے کر باب کے آخر تک ہم پڑھیں گے۔ 59ویں آیت سے شروع کر کے کلام مقدس میں لکھا ہے، پھر اس نے دوسرے سے کہا، میرے پیچھے چل۔ اس نے کہا، اے خداوند، مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ یہ واقعہ جو ہے پیرابل نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں ہونے والی گفتگو جو ہے اس کو آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے ملٹیپل اینگلز کے ساتھ، کہ کس طرح سے یہ واقعہ جو ہے بظاہر لگتا ہے کہ ایک شخص اپنے باپ کا جنازہ چھوڑ کر، ڈیڈ باڈی گھر چھوڑ کر مسیح کے پاس آیا ہے۔ ایسا کبھی ہوا تو نہیں ہے، لیکن ایسا ہونا بعید بھی نہیں ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ پھر اس نے دوسرے سے کہا، میرے پیچھے چل۔ اس نے کہا، اے خداوند، مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ اس نے اس سے کہا، مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا۔ مردوں کو کیا کرنے دے؟ اپنے مردے دفن کرنے دے، تو بادشاہی کی خبر پھیلا۔ ایک اور نے بھی کہا، اے خداوند، میں تیرے پیچھے چلوں گا، لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہو آؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جو کوئی اپنا ہاتھ حال پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ دونوں باتیں، دونوں واقعات ہو سکتا ہے کہ ملٹیپل پلیسز پر ملٹیپل ٹائمز میں ہوئے ہوں، یہ ایک جگہ پر نہ بھی ہوئے ہوں، لیکن لوکا نے ان کو ایک جگہ پر جو ہے وہ لکھا ہے، ریلیونٹ ہیں، اور دونوں میں کم و بیش ایک ہی جیسا سبق ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت لوگ جو ہیں جوش میں آ کر جو ہے خود کو مسیح کی بادشاہی یا اس کے شاگردیت میں اپنے آپ کو لانے کی کوشش میں ہوں، تاکہ ان کو ایک اچھا استاد جو ہے اس کے ساتھ منسوب کرنے کا موقع مل جائے۔ جس طرح سے دیکھا دیکھی کبھی کبھی لوگ بپتسمہ بھی لیتے ہیں، دیکھا دیکھی بہت سارے ایسے ہم کام کر جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کراؤڈ جو ہے موٹیویٹڈ ہو، اس وقت جو ہے ان کے دل جوش سے بھرے ہوں، اور دو لوگ جو ہیں انہوں نے ایک ہی وقت میں ایسی بات کہی ہو۔ یاد رکھیے، مسیح کا اس بات کو کہنے سے مراد قطعاً بھی شریعت کی کتاب میں خروج 20 میں جو لکھا ہے کہ اپنے باپ اور ماں کی عزت کر، یہ بات یہاں پر ڈینائی نہ ہوتی ہے اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ ہم جو آج گفتگو کریں گے اس میں سے کچھ بھی سبق ایسا مت نکالیے کہ جی یسوع مسیح نے والدین کی یا کچھ جو رشتے ہیں ان کی نفی کر دی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ میں یہ پہلے سے اس لیے بتا دے رہا ہوں تاکہ کوئی شخص جو ہے وہ بے راہ نہ ہو۔ یسوع مسیح نے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو بہت چیلنجنگ ہے، جو ظاہرہ طور پر اس وقت کے دستور جو تھا، جو برادری کا جو اصول تھا یا دستور تھا، اس کے اگینسٹ جاتا ہو، یا یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے اس نے سخت الفاظ کا استعمال کیا ہے، خاص طور پر ایسے شخص کے لیے جو یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کر لوں۔ ایسا شخص
जो अपने बाप का मातम भी मना रहा हो, उसको ऐसी बात कहना क्या वाजिब और जेब देता है? हमारा हमारी सोसाइटी, हमारे जो दस्तूर हैं, वो शायद इस बात की इजाज़त नहीं देते। और उस वक्त के भी दस्तूर हैं, ये बात की इजाज़त नहीं देते होंगे। यीशु मसीह ने बहुत सारे अल्फाज बारहा दफा, बाजुकात लोगों के ईमान की आजमाइश करने के लिए, बाजुकात उनकी इखलाकियात की आजमाइश के लिए, कभी कभी उनके जज्बात की आजमाइश के लिए कि इमोशनली ये कहाँ पर जो है वो खड़े हैं, उसने ऐसी बात भी कही। और कभी कभी ये कि उनकी अना पर जब चोट पड़ती है तो फिर वो कौन सी बोली बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें पहले भी हो चुकी हैं। जैसे खातून से ये कहा कि अच्छा नहीं कि लड़कों की रोटी कुत्तों को डाल दी जाए। ये मल्टीपल जो है वो मल्टीफेसेट जो है वो जुमला है, जिसके बहुत सारे जो हैं वो रुख हैं उस खातून के लिए, उसके ईमान के लिए, उसकी उसकी शहरियत पर या उसकी कौमियत पर जो है वो बहुत बड़ा सवाल था। उसकी अपनी अना जो है उससे हर्ट हो सकती थी। मसीह के अल्फाज जो हैं वो हार्श जरूर हैं, लेकिन वो बामानी हैं। और उनको जब देखा जाता है तो उनमें से जिंदगी निकलती है। आज के जो लफ्ज हैं वो भी बहुत सख्त लगते हैं, लेकिन जब तक किसी शख्स के ईमान की आजमाइश नहीं होती, वो कामलियत की तरफ कदम नहीं बढ़ा सकता, बेहतरी की तरफ नहीं चल सकता, रिफाइनमेंट जो है उसमें नहीं आती। हालात, चीजें, अल्फाज हमारी जिंदगी में कभी कभी आते हैं और कभी लाए जाते हैं, ताकि हमारे ईमान की आजमाइश हो कि हम कहाँ खड़े हैं। मुझे इजाजत दे कि पहले अपने बाप को जाकर दफन कर आऊं। क्या उसका बाप वाकई ही जो है वो मर चुका था और वो मसीह का कलाम सुनने के लिए वहां मौजूद था? अगर ऐसा था तो फिर हल पर हाथ रखकर पीछे क्यों देख रहा है? इसके बहुत सारे जो हैं इसके बहुत सारे जो हैं वो पॉसिबिलिटीज हैं कि उस शख्स ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे पहले अपने बाप को दफन करने दे। ये हो सकता है कि ये शख्स अपने बाप का पेलौठा हो, और प्लेटो की जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए उसे जरूर था कि अपने बाप की तदफीन के वक्त वहां मौजूद हो। और एक और भी जो है वो इसकी पॉसिबिलिटी है कि उसने इजाजत मांगी कि मेरा बाप अभी जिंदा है और मैं उसके मरने तक मैं उसकी खिदमत करना चाहता हूं। शरीयत का यही उसूल है, या फिर रवायात जो हैं वो यही कहती हैं कि मैं अपने बाप के मौत तक उसकी ताबेदारी में जिंदगी गुजारूं। एक और भी पॉसिबिलिटी है, और यहूदी फिरकों में ये बात जो है वो सब में नहीं लेकिन चंद फिरकों में ये बात गिनी जाती थी कि जब किसी का बाप दफन होता था तो साल भर के बाद उसकी हड्डियां फिर से निकाली जाती थी और उनको रीलोकेट किया जाता था किसी बेहतर जगह पर। उसे बेहतर कब्र या उसे बेहतर जो है वो जगह खरीद कर, मोल कर जो है वो उसको दफन किया जाता था। और ये बात जो है यहूदी हलकों में, यूसुफ की हड्डियां जब मिस्र से लाई गई थी और कानान में दफन की गई थी, कुछ लोग इस बात को जो है यूं भी लेते थे कि इमरजेंसी में जहां हो सका उसको दफन किया, लेकिन साल भर के बाद उसके लिए कोई बेहतर जगह का इंतजाम करके अपने बुजुर्गों की हड्डियां जो है वो मुख्तलिफ किसी ऐसी जगह पर जहां पर वो समझते हैं कि बेहतर जगह है, इज्जत की जगह है, मुआशरे में हम जो है वो इज्जतदार कहलाएंगे, इस किस्म की रवायात भी मौजूद थी। अगर ये पेलौठा था, उसे अपने बाप की तदफीन करना, उसकी हड्डियों का दफन करना, उसके बुढ़ापे तक उसकी खिदमत करना इसलिए भी जरूरी था ताकि वो उसकी जायदाद का, उसकी मिरास का जो है वो दुगना हिस्सा पा सके। ताबेदारी जो है वही डिटरमिन करेगी कि ये शख्स अपने बाप की जायदाद का, इस विरासत का दुगना हकदार है या नहीं है।
یہ بہت سارے ایسے نارمس تھے، ایسے قوانین تھے، ایسے اصول اور ایسی روایات تھیں جو پرانے عہد نامے کی کتابوں میں بھی لکھی ہیں، اور کچھ جو ہے بزرگوں کی روایات میں سے بھی موجود تھیں، کہ ایک جو شخص ہے جو پلوٹا ہے، اس کی ذمہ داریاں اس کے والدین کی طرف کیا بنتی ہیں۔ اگر یہ شخص عزت کے اعتبار سے کر رہا ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر یہ شخص لالچ سے کر رہا ہے خدمت، کہ میری کہیں جائیداد کا دگنا حصہ میرے ہاتھ سے نہ جاتا رہے، تو پھر وہ ایک ایسی پریکٹس، ایک ایسی خواہش کا جو ہے وہ طالب ہے جو مردہ ہے، جس کا وجود عارضی ہے، جس سے اسے کچھ حاصل نہ ہونے کا ہے۔ اور یسوع مسیح نے جو کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو، تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا، اس کے جو ہیں وہ کئی معنی جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے۔ اس کو ہم ساتھ ساتھ جیسے چل رہے ہیں، ہم اسے ڈسکس کرتے جائیں گے کہ کس طرح سے یہ جملہ جو ہے ہم سب کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ یسوع مسیح کے لیے کنگڈم مائنڈ ہونا، خدا کی بادشاہی کا قیام، اور اس کے لیے جو ہے وہ بے خطا کام اور کلام کرنا اس کے لیے سب سے اہم تھا۔ لیکن لگتا ہے کہ یہ شخص جو اپنے باپ کو جو ہے وہ دفن کرنے کی فکر میں ہے، یا جائیداد کی فکر میں ہے، یا پھر جو ہے ایک عرصہ جب تک وہ مر نہ جائے اس کے ساتھ رہنے کا خواہش مند ہے کہ اس کی ہے خدمت کرے، مسیح کے لیے یہ سیکنڈری ہے، پرائمری جو ہے وہ گول نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شخص بادشاہی کے کام سے زیادہ خواہش مند اس بات کا ہے کہ پہلے وہ روایات کی پاسداری کر لے۔ اور ایسا جب لوگ کہتے تھے کہ میں تیرے پیچھے چلوں گا، پہلے مجھے اجازت دے کہ میں اپنے گھر والوں کو الوداع کہے آؤں، یا پھر اپنے باپ کی خدمت کراؤں، یہ 12 میں سے تو نہیں ہو سکتے، لیکن یہ 70 شاگردوں میں سے ضرور ہو سکتے ہیں۔ کسی نے خواہش کی شاگرد بننے کی، اور اس نے کہا کہ پہلے مجھے اپنے باپ کو دفن کرنے دے، لیکن اس کے جو کام ہیں، اس کا جو ایجنڈاز ہیں، اس کا باپ، اس کی ماں، اس کے بہن بھائی، اس کی پراپرٹی جو ہے وہ بادشاہی سے جو ہے وہ آگے ہے، پہلا درجہ جو ہے اس کے نزدیک ان کا ہے۔ یاد رکھیے، مسیح نے کہا لیٹ دا پیپل بری دیئر اون ڈیڈس، یا بری دیر اون ڈیڈ۔ اس کی سبب کیا ہے؟ مردہ کون ہے؟ مردہ ہی مردہ کو دفن کرے گا۔ جو اسپرچولی ڈیڈ ہے اس کو فزیکل ڈیڈ کو جو ہے وہ بری کرنے دے۔ تو زندگی کے کلام کی طرف آ، تو ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو کر بادشاہی کا کام کر۔ یہ کام جو ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ جو روحانی طور پر مردہ ہے اس کو جو ہے جسمانی مردے کو دفن کرنے دے، اور یہ مردہ اس کی اپنی ذات بھی ہو سکتی ہے، اور جو ہے کوئی فزیکل بینگ بھی ہو سکتا ہے جو اس کے جسم سے باہر ہے، کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہ گنا جائے کہ جو ایماندار ہے اسے کسی مردہ کو، خواہ وہ غیر ایمانداری کیوں نہ ہو، اس سے دفن کرنے کو جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ کام کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو اہم ہے، جو ضروری ہے، اسے پہلے کیا جائے، اس کی طرف توجہ پہلے دی جائے۔ مردہ کون ہے؟ مسیح کے لیے مردہ کون ہے؟ وہ جو گناہ کے لیے زندہ ہے، جو گناہ میں دھت ہے اور مسیح کو قبول نہیں کرتا، نئے عہد نامہ کے تحت وہ مردہ ہے۔ خواہ وہ کسی بھی ریلیجن، کسی بھی جو ہے وہ کسی بھی خدا کی عبادت کرتا ہو، مسیح کے لیے نئے عہد نامے کے تحت نئی پیدائش میں خدا سے پیدا ہونے کے تعلق سے وہ مردہ ہے۔
लेकिन वो गुनाह के लिए जिंदा है और वो शरीयत के लिए जिंदा है। शरीयत उसको मुर्दा करार देती है जो गुनाह के लिए जिंदा है। जिसमें गुनाह है, जो गुनाह में जिंदगी गुजारता है, शरीयत उसको मुर्दा करार देती है। मसीह के लिए भी वो मुर्दा है, और गुनाह और शरीयत दोनों के लिए वो जिंदा है, क्योंकि दोनों के लिए उसका बदन, उसके इमोशंस, उसकी स्पिरिट एक्टिव है। लेकिन मसीह के कलाम के लिए, उसकी कॉल के लिए, चूंकि वो डिनाई करता है, नहीं सुनता, बहाने हैं उसके पास, एक्सक्यूजेस मौजूद हैं, लिहाजा वो गॉस्पल के लिए, खुशखबरी के लिए, नई जिंदगी के लिए, नई पैदाइश की तरफ से वो मुर्दा है, क्योंकि वो किसी दूसरे के लिए जिंदा है। तुम दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। जब हम जिस्म की बातें कहते हैं, शरीयत की बातें करते हैं, ये जिस्म की रास्तबाजी है। ये ट्रेडिशंस हैं, ये रवायात हैं, ये बुजुर्गों की रवायात हैं, इंसानों का कल्चर है, जो बनाया भी गया है, जो दिखाया भी गया है। और मसीह ने इस पर सरजनश भी की थी, अफसोस तुम पर फकीयो और फरीसियो, कि तुम खुदा के कलाम की निस्बत बुजुर्गों की रवायात को ज्यादा तरजीह देते हो। वो जो मसीह से दूर हैं और उसमें मौजूद नहीं हैं, वो गुनाह के लिए जिंदा हैं और शरीयत के लिए जिंदा हैं, और शरीयत उनको मुर्दा करार देती है, उन पर इल्जाम लगाती है। लेकिन जो मसीह के साथ हैं, जो मसीह में जिंदा हैं, वो बाकी सारी चीजों के लिए वो मुर्दा हैं। उन पर गुनाह का कोई असर, कोई इख्तियार नहीं है। अगर गुनाह आकर उसे जगाने की भी कोशिश करे, तो वो बदन जो मसीह में जिंदा है, वो गुनाह के लिए कभी एक्टिव नहीं होगा, और वो कभी उसे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अगर शरीयत आकर उसे जो है जगाने की और ठोकरें मारने की कोशिश करे और उसे अपना बनाने की कोशिश करे, तो मसीह में जो जिंदगी है, उसके सबब से वो मुर्दा है, शरीयत के लिए भी मुर्दा है, क्योंकि शरीयत उस पर कोई असर नहीं रखती। उसे एक ही मालिक चाहिए, और वो मसीह यीशु है, जिसमें वो जिंदा है, जिसमें वो कायम है, जिसके सबब से उसे हमेशा की जिंदगी मिली है। अब वो पुरानी मश्क और पुरानी मै की तरफ लौटना नहीं चाहता, इसीलिए वो इस तरह से ईमानदार यूं जिंदगी गुजारता है जैसे गुनाह के लिए भी मुर्दा हो और शरीयत के लिए भी बेअसर और मुर्दा हो। सिर्फ मसीह के लिए वो जिंदा है, खुशखबरी के लिए जिंदा है, और खुदा की बादशाही को रिस्पॉन्ड करने के लिए उसके सेंसेस काम करते हैं। जो नर्व शरीयत को या फिर इंसानी बहकावे को रिस्पॉन्ड करती है, वो नर्व्स सारी डेड हो चुकी हैं। मैं और आप क्यों ये बात करते हैं कि हम जो है वो शरीयत के लिए मुर्दा हैं? पौलुस रसूल, कल भी हम चर्च में जब बात कर रहे थे, तो मैं कह रहा था कि भाई पौलुस ने बड़ा एहसान किया है। खुदावन ने जो उन्हें सिखाया, वो अपने तौर पर जो है वो लिख कर चले गए। नहीं जानते थे कि कल को इन तहरीरों का क्या होगा, लेकिन खुदाए रुल कुदस ने जो है ये मुमकिन बना दिया कि हम उससे सीख सके। मेरे साथ निकालिए रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 7वां बाब और उसकी 4थी आयत। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 7वां बाब और उसकी 4थी आयत। बस ए मेरे भाइयों, तुम भी मसीह के बदन के वसीला से शरीयत के एतबार से इसलिए मुर्दा बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मुर्दों में से जिलाया गया, ताकि हम सब खुदा के लिए फल पैदा करें। क्योंकि जब जिस्मानी थे, तो गुनाह की रगबतें जो शरीयत के बायस पैदा होती थीं, मौत का फल पैदा करने के लिए हमारे अज़ा में तासीर करती थी। शरीयत के सबब का मतलब यह है कि गुनाह को जाहिर करने वाली शरीयत है, और
जहां पर शरीयत नहीं है वहां पर गुनाह महसूब नहीं होता, लेकिन मौत फिर भी राज करती है। जो मसीह में शामिल हुए उन पर शरीयत का इख्तियार नहीं है। शरीयत की तरफ से वो मुर्दा हैं, क्योंकि उनकी निस्बत खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के साथ हो गई है, ताकि वो उसके लिए जिएं। दो की खिदमत इकट्ठे नहीं कर सकते। एक ही जो है उसके साथ हमारी निस्बत रहेगी और अब्दुल्लाबाद तक होगी। मेरे साथ दूसरा हवाला निकालिए। ये तो बात थी कि जब हम मसीह में शामिल हैं, खुशखबरी किताबें हैं, फजल किताबें हैं, तो शरीयत के एतबार से हम मुर्दा हैं। शरीयत का हम पर कोई जो है वो असूल लागू नहीं होता जो हमें गुनाहगार ठहरा कर हमें हमेशा की मौत का जो है वो पाबंद ठहरा दे। दूसरा जो हवाला है वो है रूमियो के नाम पौलुस रसूल के खत के 6 बाब की 11वीं आयत को। पहली जो हवाला पढ़ा वो शरीयत के एतबार से पढ़ा, और दूसरा हवाला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है रोमन्स 6:11। वहां पर लिखा है, इस तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। इस तरह से जिंदगी गुजारो कि मसीह यीशु में तो जिंदा हो, पर शरीयत और गुनाह की तरफ से तुम अपने आप को मुर्दा समझो। इस तरह से जिंदगी गुजारो कि जैसे गुनाह और शरीयत मौजूद ही नहीं है, ताकि तुम उसी में जिंदा रह सको। लेकिन ये बात कंफ्यूजन का सबब ना हो, किसी तरह से जो है आपके बदन में, आपकी रूह में खलश पैदा ना करे। तो फिर क्या है, ये कैसी बात हुई? हम जो मसीह में जिंदा हैं, हम शरीयत और दूसरे अहकामात को हम उनकी फिजिकल प्रैक्टिस से नहीं बल्कि इस हुक्म से पूरा करते हैं कि तू खुदाबंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और ताकत से मोहब्बत रख। कलाम में लिखा है कि शरीयत और अंबिया की तालीम का दारो मदार जो है वो इसी एक हुक्म पर है। खुदा ने वक्त दिया तो हम इस पर डिटेल फिर से बात करेंगे कि इस हुक्म से शरीयत की पैरवी, शरीयत का जो है उसकी इज्जत कैसे होती है। बगैर शरीयत के जो 613 अहकाम जो गिने जाते हैं, कहे जाते हैं, उन पर अमल किए बगैर हम मसीह की मोहब्बत में खुदावंद से मोहब्बत करके हम उन अहकामात की पैरवी कैसे करते हैं, हम इस बात को जो है फिर किसी वक्त सीखेंगे। जिंदगी मसीह में इस तरह से गुजारो कि गुनाह तुम पर राज ना करे और शरीयत तुम पर इल्जाम ना लगा सके, क्योंकि उनकी तरफ से तुम मुर्दा और मसीह में जिंदा और फजल के मातहत और खुदा के बेटे होने के लिए बुलाए गए हो। लिहाजा उसका जलाल जाहिर करो। जिनके बदनों में गुनाह जिंदा है, राज करता है, वो मसीह के लिए मुर्दा होते हैं। मसीह की आवाज को, उस नर्व को उन्होंने डेड कर रखा है जो मसीह को रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन जो मसीह में जिंदा हैं, वैसे मैंने पहले कहा, शरीयत और गुनाह के और शरीयत के कानून के एतबार से और उसके इख्तियार से जो हैं वो बरी ठहरते हैं, क्योंकि वो फजल और मसीह के साथ जिंदा रहते हैं। मसीह के साथ उनकी निस्बत हुई है, और वो शरीयत के एतबार से मौत के नहीं बल्कि फजल के एतबार से जिंदगी के लिए बुलाए गए हैं और उसमें चलते हैं। हम जब कहते हैं कि लेट पीपल, ये कौन से लोग हैं? फिर पहले भी हम बात कर चुके हैं थोड़ी सी कि लेट पीपल बरी देयर ओन डेड्स। हम किस तरह से वो लोग जो दो मालिकों की खिदमत कर रहे हैं, दोनों तरफ से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, वो दोनों में से एक के भी वफादार नहीं है, ना शरीयत के और ना ही फजल के। क्योंकि दोनों की तालीम जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है।
दोनों की कहना जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है। और जो शख्स दो कश्तियों का सवार है, दो मालिकों की खिदमत करना चाहता है, वो किसी के लिए भरोसेमंद नहीं है। और जब मुसीबत आती है तो उसको किसी एक के यहां भी जगह नहीं मिलती। ना वो यहां का है, ना ही वो वहां का है, क्योंकि उसने वफादारी किसी के साथ भी नहीं की है। मैं पिछले सालों में बहुत सारी जो है वो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म पर मेरा जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट था, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर्स, उसमें ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारे जो है वो क्रॉस बॉर्डर्स चीज़ें भी शामिल होती थी। मेरा बड़ी दिलचस्पी से मैं इन चीज़ों को तब भी देखता था, सुनता था, आज भी सुनता हूँ। एक दफ़ा मैंने एक शख्स के बाबत सुना जो डबल एजेंट था, जो वेस्टर्न वर्ल्ड की इंटेलिजेंस को भी खबरें पहुंचाता था और ईस्ट में बसे हुए लोगों के साथ भी वो जुड़ा हुआ था। दोनों को खबर देता था। खबर भी मोस्ट ऑफ द टाइम सच्ची होती थी। फिर एक वक्त आया कि वो पर्दा स्क्रीन से गायब हुआ कई साल। फिर अचानक जो है वो 2-3 साल के बाद जो है नमूदार हुआ वेस्टर्न वर्ल्ड के रेडार पर। उसने कुछ ऐसी बातें जो है उनको बताई जो सच भी थी, लेकिन अब उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका हुआ था। अब वो किसी और अज़्म के साथ वापस आया था और उसने वेस्टर्न वर्ल्ड की एक बहुत बड़ा ऑफिस, एक ऐसी खातून वेस्टर्न वर्ल्ड की इंटेलिजेंस एजेंसी की, जिसको इंसाइक्लोपीडिया फॉर वॉर अगेंस्ट टेररिज्म कहा जाता था, उनका कैंप मौजूद था, उनका ऑफिस मौजूद था। 2-3 बैरिकेड्स लगे हुए थे, वो बड़ी तहफ़्फ़ुज़ में थी। लेकिन उस शख्स पर एतबार करने के सबब से वो सारे के सारे लोग जो हैं वो मर गए, क्योंकि उस शख्स ने उनको झांसा दिया और वहां पर अपने आप को एक्सप्लोर किया। इसी तरह से एक बाज और की बाबत भी जो है वो मैंने सुना भी, देखा भी। और जब उन पर मुसीबत आई तो दोनों तरफ की पार्टियों ने उसे अपना कहने से इनकार कर दिया कि ये शख्स, इसका ताल्लुक हमारे साथ नहीं है। कोई शख्स दो मालिकों के साथ वफादार होकर नहीं चल सकता जिनका एजेंडा एक ना हो। मेरे बहन और भाई, हम जिस्म के एतबार से जिंदा रहकर गुनाह को जो है वो राज करने देकर हम जिंदा रहें, उसके लिए तो हम मसीह की खिदमत कर ही नहीं सकते। इस शागिर्द ने, इस शख्स ने जो शागिर्दियत में आना चाहता है, उसने कहा पहले मुझे इजाजत दे कि मैं जाकर अपने बाप को दफन कराऊं। ये तो उस शख्स का सा हाल है जो ये कहे मनादी सुनने के बाद, जी मैं तौबा तो करना चाहता हूं, लेकिन पहले मैं अपने आप को ठीक करना चाहता हूं, पहले मैं रास्तबाजी के काम करना चाहता हूं, पहले मैं अपनी कमजोरियों पर गालिब आना चाहता हूं। मियां कौन बताएगा कि आप में कमजोरियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो खुदा के साथ रहने के लिए वाजिब नहीं। अपने आप को ताबे कर दो, वो तुम्हें खुद अपने लिए पाक करेगा, अपने लिए मुकद्दस ठहराएगा। वेस्टर्न वर्ल्ड में जब भी लोग जॉब चेंज करते हैं तो हर कंपनी, खा वो सेम किस्म के शोबे से आया हो, वैसा ही काम करने के लिए उसे जो है वो तैनात किया गया है या उसे जो है बुलाया गया है जैसा काम वो पहले कर रहा है। लेकिन हर कंपनी ये जिम्मेदारी समझती है कि उसे फिर से ट्रेन किया जाए, उससे जो है वो अपनी पॉलिसी समझाई जाए। कोई भी शख्स जिस्म के एतबार से फानी बदन की कोशिशों से लाफानी के लिए तैयार नहीं हो सकता। उसे अपने आप को लाफानी रूह के ताबे करना पड़ेगा, ताकि लाफानी रूह लाफानी खुदा के लिए और एवरलास्टिंग किंगडम के लिए उसे तैयार करे, ताकि वो सीखे कि किस कदर जरूरी है कि एक मालिक की निस्बत में रहे और एक का होकर रहे, ताकि अब्दुल्लाबाद तक जिंदगी पा सके। ये शख्स शागिर्द भी बनना चाहता है,
पर पीछे आने से पहले घर वापस जाना चाहता है। मसीह यीशु ने जब बाकी के शागिर्दों को भी बुलाया जो 12 में शामिल थे, तो लिखा है कि जब उसने उन्हें बुलाया, उनमें से बाज अपने जाल जो है वो लड़कों के पास, नौजवानों के पास छोड़कर फिल फॉर उसके पीछे हो लिए। उन्होंने सवाल नहीं किया कि जी जरा मछलियां घर तक छोड़ें, जालों को ही समेट लें, इनको थोड़ी इंस्ट्रक्शंस ही दे दें कि ये क्या काम करना है। कलाम मुकद्दस में उनकी बाबत लिखा है, वो उसी जगह पर जाल छोड़कर फिल फॉर उसके पीछे हो लिए। और एक दूसरी एग्जाम्पल जो है वो है महसूल लेने वाले की। जब उसे बुलाया गया तो वो महसूल की चौकी, अगरचे कि उसके और भी वर्कर्स होंगे उसके साथ, लिखा है वो महसूल की चौकी, उसका हिसाब, उसका डे क्लोज किए बगैर सारी चीजें वहीं छोड़कर फिल फॉर वो उसके पीछे हो लिया। और मसीह यीशु ने शिष्य से क्या कहा? वो ये कि जो हल पर हाथ रख कर पीछे देखता है वो मेरे लायक नहीं है। और ये लूका का 9वां चैप्टर है, और अब तक जो है काफी लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, काफी लोग उसकी शागिर्दियत में आ रहे हैं, आ चुके हैं, आना चाहते हैं। हर रोज अपने अपनी रूटीन के काम छोड़कर उसके पीछे उसकी तालीम सुनने आते हैं। और गालिबन ये शख्स भी हर रोज उसकी तालीम जो है वो सुनता है। उसके दिल का हाल मसीह उससे वाकिफ है। और उसने जब कहा, मसीह ने उसे कहा उसको परखने के लिए, जांचने के लिए कि तू मेरे पीछे हो ले, तो उसने कहा मुझे इजाजत दे, पहले अपने बाप की खिदमत कर लूं, अपनी जायदाद का हिस्सा बटोर लूं, उसकी हड्डियों को रीबरी कर लूं। जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरे लायक नहीं है। ना जाने उसके बाप के मरने में अभी कितना वक्त बाकी था। शायद उसने बाप को दफन किए हुए चंद महीने हुए थे, अभी 10 महीने बाकी थे कि उसकी हड्डियों को रीबरी करे। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज जो हैं इस कलाम में से निकलती हैं, लेकिन लबे लबाब ये है कि जिसका काम, जिसकी इंटेंशंस, जिसके खौफ, जिसके फियर्स खुदा की बादशाही के काम से ज्यादा जरूरी हैं, वो उसकी खिदमत के लायक नहीं है। कलाम मुकद्दस फरमाता है, तुम में से कौन है जिसने अपना घर बार, मां बाप और औलाद को छोड़ा हो और उसे जो है वो 100 गुना ना मिला हो, और आखिर में हमेशा की जिंदगी। जब हम फिक्र करते रहते हैं अपनी तौर पर, जो है हम चीजों को बनाने संवार में लगे रहते हैं, कुछ भी नहीं संवरता, सारी जिंदगी नहीं संवरता, और हम खुदा के काम से बेबहरा रहते हैं, हम उसके काम से दूर रहते हैं। खुदा के काम को करना शुरू कीजिए। लिखा है पहले तुम खुदा की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, देखो कि ये चीजें तुम्हें खुद ब खुद जो है वो ऐड कर दी जाएंगी, मिल जाएंगी। खुदा की बादशाही, किंगडम माइंड होना सबसे ज्यादा जरूरी है। गॉड विल मेक यू सेटिस्फाई। मैं ये लफ्ज इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूं सेटिस्फाई का, क्योंकि इंसान की ये जबिल्लत है, ये शरिस्त है, उसका मिजाज है कि वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता। अगर ऐसा हो सकता होता तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, आप बिजनेस की बात करें, आप घर खरीदने की बात करें, आप प्रॉपर्टी की बात करें, 1,000 पर और 1,000 जो है वो सैलरी में ऐड करते जाएं, आपकी ख्वाहिश होती है अब और ऐड हो जाए, अब और ऐड हो जाए, अब मैं ये भी ऐड करना चाहता हूं। और जब किसी शख्स को धुन लग जाए तो इसका मतलब है वो स्पिरिट ऑफ मेमन की वर्शिप में चला गया है, उससे निकलना उसके लिए मुश्किल है। वो दौलत की प्रस्तश कर रहा है। दुनिया, दौलत और खुदा, हम सब की इकट्ठे प्रस्तश नहीं कर सकते। जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरे लायक नहीं है। खुदावंद आप सबको और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आइए सरों को झुकाकर दुआ करते हैं। खुदा बाप, हम सब मिलकर अपने आप को तेरे ताबे करते हैं, और खुदावंद हम मिन्नत करते हैं, हमें फिर से असर नौ मुस्तकीम रूह डाल। हम मसीह के एतबार से हमेशा जिंदा रहना चाहते हैं, और गुनाह के एतबार से
اور وہ جو ہمارے خلاف جس نے ہرجانہ کر رکھا تھا، ہم اس کے لیے دوبارہ زندہ نہیں ہونا چاہتے۔ ہماری مدد کر۔ تیری تعریف اب بھی ہو، اور بعد میں سننے والوں پر بھی تیرا بھاری فضل ہو، یسوع ناصری کے نام میں، آمین۔